Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, all of you. Can you all please give your attendance in the chat box? Wait a minute. Let me enable it. Yes. Give your attendance in the chat box, all of you. Sir, sir, I have sent my attendance in the chat box. Okay. Sir, I have also sent my attendance in the chat. Okay. Sir, what are we doing? We have to do fractions. We are doing fractions. Yes, we are doing the chapter fractions. Till where we have done in the chapter? Sir, we have done first exercise, A1. A1. 8-point exercise number 8.1, A1. We have done A1, sir. Exercise 8.1. We have done question A. Yes, sir. Okay. Question A, all the parts we have completed. Question B, we have to do. बेटा कल गौरव सर ने क्लास ली थी आप लोगों की? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, पढ़ाया sir. सर ने? Sir, quiz. Sir ने quiz करवाया. Quiz regarding Yes, sir. quiz of for which chapter? Fraction. Fraction. Fractions. Okay. And quiz में सर ने कौन से questions पूछे आपसे? Sir, there was 3 quiz. Sir, and sir has made links for that. For that Okay. links we are given. So sir made Quiz. link for the quiz, and he shared Yes. the link in the class group. Question No, sir. not In the chat box. in the cat box. Okay. So the link were on Google form. Links were on Google No, form. sir. No, sir. Quizzes. Sir has made Sir, by quizzes. yes, sir, quizzes. Okay. Okay. चलो क्वेश्चन बी करते हैं बेटा. Find correct equivalents in the following blanks. Blanks में हमको correct equivalent लिखना है, ठीक है? I can tell how to do this. First one, I know. So let me tell you the first part. Wait, beta. So this is blank. Numerator is blank, but the denominator is given. It is 18 is equal to 1 upon 2. So these are equivalent fractions. हमको बताना है कि dash upon 18 is equal to 1 upon 2. यहाँ पर dash की जगह blank की जगह क्या आएगा? Box की जगह. Yes, all of you. Sir, 9. Sir, 9. Yes, 9 will come. कैसे निकाला हमने? कैसे निकाला? Sir, by because dividing 18 is 2. Sir, So because 9 will be 1. sir, 2 9 is 18 and 1 9 will be 9. Sir, I have found that because I have divide 18 divided by 2 and multiply it by 1. So the Yes. answer will come
9. वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात बताई थी कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इफ आई मल्टीप्लाई 1/2, ये एक फ्रैक्शन है 1/2, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा 2/4। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। ऐसे ही अगर मैं 1/2 को 9/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी नॉट 9/18, 9/9 से, आई एम सॉरी, 9/9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 into 9 9, 2 into 9 18। देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा 9/9 से, तो 1 into 9 9 हो गया, 2 into 9 18 हो गया। आंसर क्या आया, 9/18। डिनोमिनेटर 18 हो गया, न्यूमरेटर 9 हो गया, तो 9 आएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें देन आल्सो वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 9/18 दोनों को अगर मैं 2/2 से डिवाइड कर देता हूं मान लो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों को सेम नंबर से, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो आई विल गेट 1/2। ठीक है, Sir. Okay, sir. तो आंसर विल बी 9/18। Sir, in the third one, we have to do like this. Excuse me, sir. यस, Ma'am, sir, in third one, we have to do like this. We have to first 8 divided by 40. Then what we have to do, sir? 8 divided by 40. Then अभी what we have बताते to हैं do? बेटा, अभी बताते हैं। सेकेंड पार्ट 21/24 इज इक्वल टू 7/। अब आपको मैं सर बताता हूँ कैसे सोचना है। 21 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे सो यू गेट 7, बताइए। Sir, 3 सर से. 3 से। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 7। सो 24 को भी 3 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा बताओ। 24 डिवाइडेड सर बाय 8 सर 8, 8 आंसर इज 8। क्लियर है। Yes, sir. क्वेश्चन 3 देखिए, 8/- is equal to 40/45। Sir, अब the answer will be 9. सर Yes, sir, 9 because 8 divided by 40 is And 5 is sir, equals is to 5 40. and 5 divided by 45 is equals to 9. तो देखो 40 ऐसे उल्टा भी देख सकते हैं। 8 को हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा, 5 से, Sir, by 5. 40 मिल गया। Sir, by 5. 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 40, मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40। सो विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45। कौन से नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके 45 आता है, 9. 9 सर को। 9 into 5 is 45, so answer is 9। क्लियर है। कैन यू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑल ऑफ यू। Yes, sir. करिए, Yes, जल्दी sir. जल्दी से करो, डू देम। Sir, I have done all the parts already. ठीक है बेटा, बाकी बच्चे जल्दी से कंप्लीट करिए, डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स, 2 मिनट्स में करो।
Yes, have you all completed the parts? Check your answers, Sir. all of you. I'm Yes, telling the sir. answers. Check your answers. मैं आंसर Yes, बता रहा हूँ sir. बच्चों, जल्दी से चेक करो. Fourth part, the answer is 52. Yes, sir. Fifth Sir, part, the the fifth answer is part, 20. the answer is 20. बेटा Sir, Nihit, मैं 20. Nihit, let me tell the answers. You all just check. आपको बस बताना है it is yes or no, correct or not. Okay. So first part, the answer is 20, and sixth Yes, part, sir. Yes, sir. sixth part, the answer is 11. Okay, Yes, sir. Yes, sir. fine, Sir, my all are correct. Sir, my all are correct. very good. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Let's start with question number C. Find the next three equivalent fractions for the following. अगले तीन equivalent fractions जो हैं, next three, कोई भी next three से मतलब नहीं है, कोई भी तीन equivalent fractions आप लोग निकाल सकते हैं. तो हमने सीख लिया equivalent fractions क्या होते हैं. 2/5 के थ्री equivalent fractions निकालने हैं. तो पहला निकालते हैं. देखो 2/5. If I multiply numerator and denominator both by 2, I will get an equivalent fraction. मिल जाएगा मुझे. क्या मिलेगा? 4/10. Am I right? 4/10. 2/2 से मल्टीप्लाई करके 4/10 मिल जाएगा. तो you can simply directly write in the book only 4/10. डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है. Similarly 2/5 अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, I will get another fraction equivalent 6/15. तो डायरेक्टली आप 6/15 भी लिख लीजिए यहाँ पर इन द बुक. समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं बच्चों? एक और Yes, निकालना sir. है, 3 निकालने हैं. तो थर्ड वाला ये रहा, इंटू 4/4 कर Sir, लो. 8/20. 8/20. So you can write 8/20. So this is your answer. Okay, ये तीन आपको लिखने थे, ये रहे आपके. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Sir, Do this the we have to do in book. in the book, yes. Do all the remaining parts. Can you all do all the remaining parts? समझ में आ गया बच्चों या नहीं आया? जल्दी बताओ. नहीं आया? Sir, I have understood. Sir, आ गया. Very good. Sir, I Start doing, understood. Sir, I have also understood. very good. Start doing all the remaining parts.
Yes, done. Everyone, all the parts. Yes, sir. Yes, sir, I have done. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन डी, सॉरी, सी वी हैव डन। कोई डाउट है बेटा किसी को सी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में? No, sir. नो सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी कह रहा है 24/27. So find an equivalent fraction for the following by dividing. Divide करके equivalent fraction निकालना है हमको। डिवाइड करके कैसे करते हैं बेटा? पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा, अब जब डिवाइड वाला केस आता है, मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर को किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन के केस में क्या होता है, वी कैन नॉट डिवाइड फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर, दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। वी विल हैव टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 27। सो कैन यू टेल मी अ कॉमन फैक्टर? ऐसा नंबर पता लगाइए जिससे let me speak। ऐसा नंबर पता लगाना है पहली बात तो, जिससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना? तो 2 नहीं लेंगे। Divided by 3. 24 और 27 दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं ना, तो वी विल राइट 24/27 डिवाइडेड बाय 3/3। दोनों को 3 से डिवाइड करो, 24 डिवाइड बाय 3 इज 8, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। आंसर हो गया 8/9। बताइए क्लियर है या नहीं है? पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। क्लियर है? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? नो डाउट? ठीक है, चलिए करिए फिर ऑल द पार्ट्स। 3 Sir, मिनट। I have done this part already. वेरी गुड एवरीवन, यू ऑल कैन डू। 3 मिनट्स दे रहा हूं मैं, जल्दी से करो।
Okay, check your answers, all of you. मैं बता रहा हूँ, और the answers में vary also, आपके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं. So in question number 2, second part, मतलब second part of question D, if you are dividing by 10, अगर आपने 10 से divide किया, then your answer will be 3/5. 2 से भी divide कर सकते थे आप, 5 से भी कर सकते थे. If you have divided by 2, then answer will be 15/25. क्या आंसर है, all of you? Tell me your answer of second question. Sir, my answer is 3 Sir, upon 5. 15/25. Sir, Both are 15 correct. upon 25. 2/5, sorry, 3/5 is also correct. 15/25 is also correct. And even 6/10 is also correct. 6/10 is also correct. ठीक है? All the three answers are correct. So 44/55 इसका एक ही आंसर आएगा. That will be 4/5 dividing by 11. Numerator denominator दोनों को 11 से डिवाइड किया. So answer will be 4/5. फोर्थ पार्ट, दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड किया होगा आपने, आई होप सबने 7 से, Yes, sir. बल्कि 14 से भी कर सकते हैं दोनों को. 7 से अगर किया है, 2 से भी कर सकते हैं एक्चुअली. इफ यू हैव डिवाइडेड बाय 2, देन योर आंसर विल बी 21/28. Sir, I have divided by 2. My answer is 21/28. करेक्ट. एंड इफ यू हैव डिवाइडेड बाय 7, योर आंसर विल बी 6/8. अगर आपने 7 से डिवाइड किया है, योर आंसर विल बी 6/8. If you have divided by 14, 6/8. Sir, my Correct. answer is 6/8. correct. If you have divided by 14, then your answer will be 3/4. ठीक है? This is also correct. तीनों Sir, आंसर third correct. one can be divided by 5 also. 5 कैसे हो जाएगा? 5 से 44 5 से डिवाइड होता है, वरुण गोयल. No. Yes, sir. Fifth part. Okay, next question. Fifth part जो है उसमें you must have divided by 3 or by 9. 3 या 9 Sir, दोनों I में have से किसी से भी कर सकते. divided by 3. ओके, करेक्ट. 3 या 9 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा. आई होप यू ऑल हैव डन करेक्टली. आगे बढ़ जाएं. 65/143 किससे करा? 13 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर. करे या नहीं करे? 65/143. Sir, answer will be 5/11. Excellent. Sir, 65/143, both the numbers are Sir, divisible by 13. Sir, 5/11. करेक्ट. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 13 से डिवाइड करेंगे. द आंसर विल बी 5/11. ओके, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. क्वेश्चन ई Yes, पे आते हैं. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म. अब हमको करना है फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन में उससे सिमिलर है क्वेश्चन ई जो है. लेट मी शो कैसे करते हैं. रेडी एवरीवन? सो इट विल बी बेटर इफ यू डू इट इन योर नोटबुक. ज्यादा अच्छा होगा. क्वेश्चन ई, कैन यू ऑल डू इट इन योर नोटबुक? 84. sir, we can also do it in the book. बुक में भी कर सकते हैं, बट नोटबुक में बेटर रहेगा बिकॉज सिंप्लीफिकेशन सिखाना है आप लोगों को. ओके.
Yes. 84 upon 96. Sir, So we can sir, it is 7 upon 8. 7 upon 8 is the correct answer, final answer. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम लोग 1/2. नहीं बेटा 1/2 नहीं है, 1/2 इज नॉट करेक्ट. इफ वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 2/2, देखो ध्यान से देखना कैसे करते हैं. पहले चलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया, दोनों को हो रहे हैं 42/48 आ गया. अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, कर सकते हैं 2 से डिवाइड फिर से. यस, फिर से कर सकते हैं. तो 42/48 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको. सो अगेन डिवाइड बाय 2, यू गेट 20. जब तक डिवाइड होता रहेगा किसी न किसी नंबर से तब तक हम करते रहेंगे. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइटिंग इन द लोएस्ट टर्म. इसी को बोलते हैं राइटिंग द आंसर इन द लोएस्ट टर्म. तो जब तक डिवीजन होता रहेगा किसी ना किसी नंबर से, वी विल कंटिन्यू डिवाइडिंग. समझ में आ गया पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 24. No, sir, it will be divided by 3. Can we further do it? Can we divide further Yes, by any it will be number? divided by 3. Yes, now also we can divide by 3. Sir, 3. तो कंटिन्यू करो डिवाइड करना, you get 7/8. So this is the final answer. Sir, we can no more divide now. Sir, this is Yes. the lowest term. Yes, this is your answer in the lowest term. Sir, we have to do it in the notebook. Yes, it's better if you do in the notebook. Do it in the notebook. Yes. Have you all understood कैसे करना है? और इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज बड़े नंबर से एकदम डिवाइड करना इतना इजी नहीं है. 84/96. इफ यू डायरेक्टली डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 12, आपको डायरेक्टली आंसर 7/8 मिल जाएगा. दोनों को हमने डायरेक्टली अगर 12 से डिवाइड कर दी और आंसर भी 7/8, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा. सो बट इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट. एकदम से बड़े नंबर से डिवाइड करना इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट. एक और तरीका है अगर आपको फाइंड करना है कि कौन से बड़े नंबर से वी कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स, बाय फाइंडिंग द HCF. ये पता है मैंने किससे डिवाइड करा है? मैंने दोनों नंबर्स को उनके HCF से डिवाइड करा है. HCF, do you all know what is HCF? Sir, highest sir. common factor. हाँ, तो Highest common आप factor. 84, हाँ आप 84/96 का HCF निकालिए. HCF निकालने के बाद जब आपको दिखा 12 आया, तो आप दोनों नंबर्स को 12 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर इज 7/8. क्लियर है? तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है फर्स्ट वाला. सेकंड वाला मेथड वो जो है वो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा काम मेहनत करनी है. वो क्या है? यू हैव टू फाइंड HCF. बोथ द मेथड्स आर क्लियर? Yes, Sir, sir. the meeting is about to be ended. Yes. Okay, thank you all of you for the class. We will continue in the next class whenever we have it. Thank you.